A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the important topic related to the very important chapter of the part B, that is an accounting ratio. In this chapter, firstly we discuss the various formulas related to the accounting ratio, that is a profitability ratio, activity and turnover ratio, and the solvency ratio. And you know very well, in the last video we discussed some of the important practical problem related to the interest coverage ratio and inventory turnover ratio. So in this video, before starting the new ratio, that is the last ratio of this chapter, that is an profitability ratio. Before that, firstly we discussed and analyze the very important topic, the practical question related to the different turnover ratio, that is a trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, average collection period, average payment period, okay, as well as the working capital turnover ratio. So without creating delay, let's discuss the today's session. The first question, and the question is related to the debtor turnover ratio, or in other words we can say that the trade receivable turnover ratio. The question is calculate trade receivable turnover ratio. So what is the meaning of trade receivable turnover ratio? Trade receivable turnover ratio establish the relationship between the credit sales and trade receivables, and the information are total revenue from operation. Total revenue from operation is 7,50,000. Cash revenue from operation will be a 50,000. Opening trade receivables will be a 1,17,000, and closing trade receivable will be a 83,000. So this will be a various information related to the trade receivable turnover ratio. इसमें हम कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं. Calculate trade receivable turnover ratio and average collection period. आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है इस क्वेश्चन में. So how we will solve such type of the question? You know very well what is the formula of trade receivable turnover ratio. The formula of trade receivable turnover ratio will be a credit revenue from operation, the whole divided by average turnover. And you know very well what is the credit revenue from operation. Credit revenue from operation is equals to the total revenue from operation minus cash revenue from operation. यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. यानी टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन का वो पार्ट जिसको हमने किस पे सेल किया है? क्रेडिट पे सेल किया. सो अगर हम टोटल सेल्स में से अगर कैश सेल्स माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मिल जाएगा. So credit revenue from operation will be a total revenue from operation is 7,50,000 minus cash revenue from operation is 50,000. So credit revenue from operation will be a 7 lakh. Okay, and now let's move to the average trade receivable. Average trade receivable कैसे find out होगा? The total of opening TR plus closing TR, the whole divided by 2. The opening TR will be 1,70,000, closing TR will be 83,000 divided by 2, that is 2 lakh divided by 2 equals to 1 lakh. So आपकी दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी फाइंड आउट हो गया और आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी फाइंड आउट हो गया. एंड नाउ दिस फॉर्मूला, with the help of this formula we find out the trade receivable turnover ratio. So trade receivable turnover ratio equals to credit sales, that is in 7 lakh,
whole divided by average TR is 1 lakh. So trade receivable turnover ratio will be a 7 times. So please note down the answer of this question is 7 times. बट इतना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के साथ साथ एवरेज कलेक्शन पीरियड भी पूछा जा सकता है. सो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो हमारे पास दो ऑप्शन है. हम डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 12/7. मंथ्स में अगर कैलकुलेट करना है तो 12 एक साल में कितने महीने होते हैं? 12. सो 12/7. सो ये आ जाएगा आपका मंथ में. और डेज में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 365/7 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा डेज में. ओके. सो डेज आप पॉइंट में मत रखिएगा. डेज अगर ये पॉइंट में आता भी है तो जैसे ये आएगा 52.1, तो आंसर विल बी 52 डेज. डेज कभी भी पॉइंट में नहीं होगा. मंथ आप चाहें तो आप मंथ को पॉइंट में रख सकते हैं, क्योंकि मंथ में काफी डेज होते हैं, लेकिन डेज में पॉइंट नहीं हो सकता. कि 52.1 का मतलब क्या है? 52 डेज के बाद पहला पॉइंट, मतलब सुबह दोपहर शाम, ऐसा आप एनालाइज नहीं कर सकते. इसीलिए इसमें आप इसको अप्रोक्सीमेटली लेते हैं. 52.1 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 53 डेज हो जाएगा. यानी आपका जब भी कन्वर्जन होगा, जब भी पेमेंट मिलेगा, वो 52 डेज में नहीं मिलेगा, 53rd डेज पे मिलेगा. सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन which are related to the trade receivable turnover ratio. Now let's we move to the next question, which are also related to the activity and turnover ratio. The question is which is related to the trade payable turnover ratio. The question is trade payable turnover ratio and average payment period. Okay. इंफॉर्मेशन जो है वो हम चेंज कर लेते हैं. So you can see that the question is calculate trade payable turnover ratio. Trade payable turnover ratio and average payment period. और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, so information is given in this question is total purchase is 8,50,000. Cash purchase will be a 2,50,000. Opening trade payable will be a 2,50,000. And closing trade payable is 1,50,000. So this is an 4 information which are given to find out the trade payable turnover ratio and average payment period. So first of all हम ये देखेंगे what is the formula for calculating the trade payable turnover ratio, and the formula is trade payable turnover ratio equals to credit purchase the whole divided by average trade payable. So हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट परचेज क्या होता है. पार्ट ऑफ द टोटल परचेज जिसे हमने क्रेडिट पे परचेज किया, उधार पे पैसा परचेज किया. सो क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला हो सकता है टोटल परचेज माइनस कैश परचेज. सो टोटल परचेज विल बी 8,50,000 minus cash purchase will be a 2,50,000. So it will be a 6 lakh. और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा? अभी जस्ट हम लोगों ने निकालना सीखा है. एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल द होल डिवाइडेड बाय 2. Okay, so opening trade payable will be a 2,50,000. Closing trade payable will be a 1,50,000 divided by 2 is 3 and 4 lakh. 4 lakh divided by 2, that is a 2 lakh. So आपका क्रेडिट परचेज भी निकल गया, एवरेज ट्रेड पेबल भी निकल गया. सो नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है?
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आराम से निकल जाएगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 6 lakh is a credit purchase, whole divided by 2 lakh is the average trade payable is a 3 times. And as well as we have also find out the average payment period. So average payment period equals to, और हमें एवरेज पेमेंट पीरियड किसमें फाइंड आउट करना है, डेज में या मंथ में? सो चलिए किसी में फाइंड आउट करना है, चलिए मंथ में पहले फाइंड आउट करना है। 12/3, सो ये हो गया 4 मंथ। और अगर आपको डेज में फाइंड आउट करना है 365/3, 121.6 आएगा, तो उसको आप कर देंगे 122 days. So this is the solution of the question number 2, which are related to the trade payable turnover ratio. And now we are moving to the practical question related to the calculation of working capital turnover ratio. And after that we will move to the next type of the ratio, that is an profitability ratio. Now we are moving to the next type of the question. The question is find out the working capital turnover ratio. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. So how we will find out the working capital turnover ratio? Working capital turnover ratio will be find out with the help of the relationship between the working capital and revenue from operation. So the question is find out working capital turnover ratio. Okay, and the information is revenue from operation is 12 lakh, current liabilities will be a 2 lakh, total liability will be a 8 lakh, and non-current assets will be a 3 lakh. So फिर से मैं बता दूं, total liability will be a 8 lakh, non-current assets will be a 3 lakh, current liability will be a 2 lakh, non-current assets will be a 3 lakh. So you can see that with the help of this information we have to find out the total working capital turnover ratio. So first of all, what is the formula of working capital turnover ratio? The formula of working capital turnover ratio will be a revenue from operation upon working capital. So working capital का फॉर्मेट होता है current assets minus current liability, whereas revenue from operation is also given, already given in this portion, is 12 lakh. So revenue from operation तो already given है, हमें working capital निकालना है. working capital का फॉर्मूला क्या था? current assets minus current liability. current liability is also given, current assets is not given, current liability is given is 2 lakh. So हमें क्या फाइंड आउट करना है? current assets. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे current assets? Total liability is given, non-current assets given, current liability is given. How we will find out the current assets? ये हमारे लिए चैलेंज का काम. अब करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपनी बैलेंस शीट को. बैलेंस शीट को इसलिए ध्यान रखना है इसलिए क्योंकि देखिए बेसिकली यू नो वेरी वेल, आपको ये पता है कि जो करंट एसेट्स होती है, ठीक है, करंट एसेट्स जो होती है इसमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये जो टोटल लायबिलिटीज है ये है टोटल एसेट्स है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज टोटल एसेट्स. सो जो करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स होती है या आप कह लो टोटल एसेट्स जो होती है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है?
नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स होगा, ठीक है। अब टोटल एसेट्स इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब आप यहां पे थोड़ा थिंक करोगे तो आप इससे एक फॉर्मूला बना सकते हो, करंट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। सो टोटल एसेट्स दिया है 8 लाख एंड नॉन करंट एसेट्स 3 लाख। सो करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स कितना आ गया 5 लाख। सो करंट एसेट्स 5 लाख, करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। सो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा 5 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 3 लाख। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल का रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 12 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख इक्वल्स टू 4 टाइम्स, इक्वल्स टू व्हाट 4 टाइम्स। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, द लास्ट टाइप ऑफ द रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए ये सब बेसिक एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें कई टाइप्स के वेरिएशंस के क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें हम ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे और वीडियोस में भी आपके सामने टाइम टू टाइम प्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रेशियो, दैट इज एन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, नाम से ही क्लियर है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक ऐसा रेशियो जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। सो लेट्स वी मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ द रेशियो, दैट इज एन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें कौन कौन से रेशियोज आएंगे, रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब के चलिए डिस्कस करते हैं। The name of the ratio will be a profitability ratio। नाम से क्लियर है, प्रॉफिट प्लस एबिलिटी, यानी एक ऐसा रेशियो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एबिलिटी को मेजर करता है। यानी इस रेशियो से बेसिकली फर्म क्या करती है, अपनी प्रॉफिट एबिलिटी पावर को क्या करती है, गेस करती है। प्रॉफिट एबिलिटी के पावर को क्या करती है, जनरेट करती है कि कैसे हम अपनी प्रॉफिट को प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली दिस रेशियो मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और इस रेशियो में आपको कई रेशियोज पढ़ने हैं, पहले मैं नाम बता देता हूं। इनके नाम इस तरह से हैं। सबसे पहला और पॉपुलर रेशियो है दैट इज एन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरे रेशियो का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। थर्ड रेशियो का नाम है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फोर्थ का है ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। और भी इसमें कई रेशियोज हैं, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसे हम ROI भी कहते हैं, ठीक है। और कोई रेशियोज आपके सिलेबस में है इस चैप्टर से लेकर? नहीं, यहाँ पे आपका सारा रेशियो कंप्लीट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये सारे रेशियोज जो हैं वो परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं, परसेंटेज में। और इन सारे रेशियोज का बेसिकली जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेल्स होता है, जिसे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। यानी दो इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज इन द परसेंटेज as well as this ratio will be calculated on the basis of net revenue from operation. What is the meaning of net revenue from operation? The total sales minus sales return. What are the formulas of the different ratio? Let's discuss about it. पहले ratios का नाम है gross profit ratio. 11th में पढ़ा है, what is the gross profit? Gross profit shows the difference between the sales and cost of goods sold. यानी कोई सामान बना कितने में और बेचा कितने में, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो डिफरेंस बताता है सेल्स और कॉस्ट के बीच का, और ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। सो वन बाय वन इसका फॉर्मूला अपने कॉपी में नोट करिए। पहला है आपका
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? अभी मैंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट द होल डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। 100 इसलिए क्योंकि इसको किस में प्रेजेंट करना है, हमें परसेंटेज में प्रेजेंट। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, मैंने इसका फॉर्मूला बताया है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने जस्ट आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इसके बारे में बताया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या बताया है हमने कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। गॉट इट? ये सारी एक एक लाइन, एक एक पॉइंट अपने कॉपीज में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वाइल लर्न सच टाइप ऑफ दी फॉर्मूला। मुझे भी ये सारे फॉर्मूला इसलिए याद हो गए हैं क्योंकि मैं इसके हमेशा टच में रहा हूँ, हमेशा इस पर प्रैक्टिस किया। आप भी अगर आप इन सारे रेशियोज पे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे फॉर्मूलाज एकदम लर्न हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ एंड यू कैन सी दैट, अगर आप मुझसे पूछे सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रेशियो, तो मैं बताता हूँ ना, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो में 2 ही रेशियो है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। थोड़े हायर स्टडीज में जाओगे तो एक रेशियो और बढ़ जाएगा, एसिड टेस्ट रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में आप क्या पढ़ते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज पे, तो उसमें हमेशा जनरली बात होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और देखिए चौथा रेशियोज आ गए हम लोग, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, करंट जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ओपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ओआर रेशियो जिसे कहते हैं, एंड आरओआई। तो आप प्रैक्टिस करिए चीजों को। दूसरा रेशियो का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नाम से क्लियर है, एनपीआर। नेट प्रॉफिट क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा नेट प्रॉफिट द होल डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में। ठीक है, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, सर हाउ वी विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट निकालने का 2 अप्रोचेस है, मतलब एक अप्रोच है वो सीधा सीधा अप्रोच है, वो क्या है आपका कि जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दो ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट, और प्लस कर दो ऑल टाइप ऑफ इनकम। मतलब आप उसमें क्लासिफाई मत करो कि कौन सी डायरेक्ट इनकम है कौन सी इनडायरेक्ट है, सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, सारे इनकम्स को ऐड कर दो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना। दूसरा इसका तरीका है नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, जो आप ग्रॉस प्रॉफिट से निकालते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, मतलब पहले ग्रॉस प्रॉफिट अगर दिया है तो ठीक है, नहीं है तो निकालिए, फिर उसमें से माइनस करिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लगते बल्कि प्रोडक्ट को सेल करने में लगते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और उसमें ऐड कर दीजिए इनडायरेक्ट इनकम। ये सारी चीजें आप लोग किसमें पढ़े हुए हो, 11th में, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस शो करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस। पीएल अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस शो करते थे आप लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो था वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते थे। सर इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब बात वही है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब
सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, now let's we move to the third type of the ratio is operating profit ratio। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से पहले हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज मच इजियर देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ द रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नाम से ही क्लियर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, सीक्वेंस में ही चलते हैं। पहले हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्कस किया, अब हम लोगों ने नेट प्रॉफिट रेशियो डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट द होल डिवाइडेड बाई net revenue from operation into 100 equals to in percentage। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? एक ऐसी प्रॉफिट जो बिजनेस को चलाने से हुई है, और मैं बता दूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइज बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर जाके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का होता है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए ग्रॉस प्रॉफिट के पहले होता है या नेट प्रॉफिट के बाद होता है, नहीं। सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट विच आर डेराइव्ड फ्रॉम डिडक्शन ऑफ द ऑल द एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंस घटाने के बाद जो प्रॉफिट होता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैसे कैलकुलेट होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होता है बेसिकली, ये कैलकुलेट होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए यहां पर क्या था, नेट प्रॉफिट जब हम लोग निकाल रहे थे तो नेट प्रॉफिट में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, नेट प्रॉफिट में हम लोगों ने क्या किया था बेसिकली कि हम लोगों ने सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया था। ठीक है, सारे एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस क्या था? इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन यहां पर हम सिर्फ अदर ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं, वो इनकम ऐड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, और वही एक्सपेंस माइनस करते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए किए गए। अब इसको भी लेकर काफी आपके मन में आएगा सर विच टाइप ऑफ द एक्सपेंस विल बी टेकन एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो आप अपने कॉपी में लिख लो। वैसे मैंने 11th में बताया हुआ है किस तरह के एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिए जाते हैं। पहला है इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन के बाद है आपका अदर एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सो ये सारे एक्सपेंसेस आपके किस में कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी कि आप ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ क्या माइनस करेंगे? कौन से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। या अगर आप अदर वर्ड में कहें जैसे फाइनेंस कॉस्ट है और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनकम है, ये क्या ऐड और लेस होते हैं? नहीं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ द इनकम एक्सपेंसेस आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। ओके, सो प्लीज नोट डाउन ये सारे फॉर्मूलाज। कल अभी हम आपको और डिफरेंस बताएंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सो
in today's video you can see that we discussed the various practical problem related to the inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio and working capital turnover ratio, as well as we discussed the first three ratios related to the profitability ratios. So आज के लिए इतना ही. Thank you, take care, goodbye and please solve the maximum practical question. Goodbye.